Okay. So welcome back to my channel, Anis Sir's Technology. In this lecture, we are going to discuss conditional SOP and POS. This is basically the continuation series of K-map Boolean algebra. Okay. So today we are going to discuss the board question, that is 2017. A school intends to select the candidate for an inter-school essay competition as per the given criteria below. In these kinds of questions, always remember one thing: the criteria will be always given in the question. On the basis of these criteria, you have to plot zeros or one. It depends upon the question. Okay, 1 second please. Sometime in this question is based on conditional SOP, means the conditional sum of product, and sometime the question based on conditional POS. Okay. So that's why the topic name is conditional SOP and POS. These questions already we have discussed in the previous lecture, and today we are going to discuss this question, 2017. So first of all, we have to concentrate on two things. The number one is what are the inputs and how many variables are involved in the input. So there are 4 variables. Okay, no problem. So let's get started. Just a moment. Okay. Now in the question there are 4 variables are mentioned. So accordingly we have to create a 4 variable to table. Okay, fine. And one additional column for the output. Output variable will also be mentioned in the question. Let me check. See, this is X output. Okay, X is the output. These are the inputs and X is the output. So first of all, we only concentrate on the input and output. Okay, so X I am just creating for output. And you know that there are the 4 variables. So the truth table will be created with the combination of 16. 1 second. So immediately we have to construct 80678. 80 then 81. Understand? 80 then 81. Total 16. Just a moment. Total 16. Okay. Then after that, only for 1 minute. Okay. Now after that, 4041. Okay. Little fast manner. 2, 3, 4. Then again 1, 2, 3, 4, 0. Then 4, 1. Understand? Similarly, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 1. Okay. Now after that, 0, 1, 0, 1. Okay. I'm just copying. 1 second, please. All right. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Done. Okay. Just I want to make a serial number for cardinal creation. So 0, 1. It will be till 15. All right. The major part has been done. Okay. Now, okay. Now we have to write the output. Okay. So output will always generated, or output always generated on the basis of condition, and the condition always mentioned in the question. Okay.
So let me check what are the conditions. Okay, so these are the condition. Only this much area you have to concentrate. Conditions and ABCD. So 1 second, please. The student has participated in the earlier competition. The participated in the competition earlier means according to the condition. अगर हम इतना पार्ट देखें तो A हमारा 1 होना चाहिए. ओके, अच्छा, कंडीशंस पर हमको 1 प्लॉट करना है या 0, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है. इन ऑल द अबव केसेस 1 इंडिकेट यस एंड 0 इंडिकेट नो. So 1 indicate yes and 0 indicate no for all the cases. तो जहां पर ये केसेस हमारे ट्रू हो रहे हैं वहां पर हमको 1 प्लॉट करना है, और जहां पर केसेस हमारे फॉल्स हो रहे हैं वहां पे हमें 0 प्लॉट करना है. 1 इंडिकेट yes एंड 0 इंडिकेट no. जहां जहां पर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है वहां वहां पे हमको 1 प्लॉट करना है. ओके, 1 मिनट. So just set this much. Okay, the student is participated in the earlier competition. So मतलब A हमारा 1 होना चाहिए according to the first condition. Okay, now after that and is very creative. तो is very creative is B. So B भी हमारा 1 होना चाहिए. Now what about C and D? C and D हमारे चाहे 0 हो या 1 हो, it doesn't matter for the first condition. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ए और बी 1 होना चाहिए. सी और डी कुछ भी हो, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है. आइदर दे आर 0 और 1, इसके अलावा तो होंगे नहीं. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन? द स्टूडेंट इज वेरी क्रिएटिव. ओके, तो द स्टूडेंट इज वेरी क्रिएटिव मतलब हमारा बी जो है वो 1 होना चाहिए. ओके, एंड हैज एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस. Excellent general awareness means D. You can see has an excellent general awareness. और क्वेश्चन में कहा गया and has a excellent general awareness means हमारा जो D है वो भी 1 होना चाहिए, वो भी 1 होना चाहिए. But has not participated. Has not. Here not is very important. Has not participated in the earlier competition. और ए कह रहा है कि पार्टिसिपेटेड इन द अर्लियर कंपटीशन, और कंडीशन में हैज नॉट पार्टिसिपेटेड, यानी कि बी यानी कि सॉरी ए हमारा जो है वो 0 होना चाहिए. अब हमारे पास सी बचा. सी कुछ भी हो, आइदर 0 हो या 1 हो, इट डजंट मैटर. अगर कंडीशन में नॉट दिया है तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, या बी का या सी का या डी का, जो भी उस वेरिएबल पर सूट कर रही है कंडीशन, उस पर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना होगा. यहां पर दे रहा बट हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द अर्लियर कंपटीशन, एंड ए कह रहा है पार्टिसिपेटेड इन द अर्लियर कंपटीशन. तो जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये नॉट हो जाएगा. ओके, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 0. हमने यहां पर 0 ले लिया. ओके, इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चन में. बाकी सब कुछ इजी है, ज्यादा टफ नहीं. एक बार हम और अपनी कंडीशन को रिव्यू कर लेंगे. तीसरी कंडीशन हम बना लें. द स्टूडेंट हैज एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस. ओके, डी हमारा जो है वो 1 होना चाहिए. 1 मिनट. ओके, तो डी हमारा जो है वो 1 होना चाहिए. यहां पर हम अपनी थर्ड कंडीशन लिख रहे हैं. डी हमारा 1 होना चाहिए. ओके, दिस इज माय थर्ड कंडीशन. पहले हम सारी कंडीशन फ्रेम कर लें. ओके, द स्टूडेंट हैज द एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस एंड हैज won prize in an inter house competition. So prize won inter competition मतलब C, यानी C भी हमारा 1 होना चाहिए. Now what about A and B? कुछ भी हो, it doesn't matter. तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से चलें, one minute, I just want to ask, all the conditions are clear to all of you? Can you please confirm? All the conditions are clear to all of you? Any doubt in particular condition? Any doubt? No, sir. Okay, because there are 5 to 6 participants, or okay, I'm asking to everyone. No problem. Okay, then we can move to the next level.
तो सबसे पहली कंडीशन हमको कंसंट्रेट करना है A1 B1, बाकी सारी कंडीशंस अभी आप भूल जाइए, एक एक कंडीशन करके लेके चलते हैं। A1 और B1, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। A1 और B1, तो A1 तो यहां से स्टार्ट हुआ है, A के साथ B का 1 भी होना जरूरी है, तो यहां पर तो नहीं है, कोई बात नहीं, लीव इट। अब हम यहां देखते हैं 9th में A तो 1 है लेकिन B साथ में 1 नहीं मिल रहा है, तो B भी साथ में 1 होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। 10th वाले में भी यही प्रॉब्लम है, A1 है बट B is not 1, so we have to leave. What about 12? 12 is A1 and B is also 1, तो यहां पर हम 1 प्लॉट कर सकते हैं। 13 में A1 B is also 1, C और D पर हमें बिल्कुल नहीं सोचना और देखना है, वो कुछ भी हो। Okay, now after that, okay, 1 minute. A is 1, B is also 1. Second row is 1, second row is B, first row is 1. A, okay. So this is 1. Now what about this? This is also, this will be also 1. Okay. Now first condition is over. Okay. Now what about the second condition? Second condition में A0, B1, D1. A0, okay, 1 minute. A0, B1, नहीं, A0 right, but B is not 1, no problem, इसको छोड़ेंगे हम, leave it। यहां देखते हैं 4 में A0, B1, correct, and D should also be 1, but D is not 1 over here, so we have to leave। Now what about this condition? इस कंडीशन पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 0, A0, B1 and D is also 1, absolutely right, so it should be 1, understand? Now A0, B1, D is 0, so we cannot take 1. Now what about 7? A0, B1 and D is also 1. So let me highlight this column because ये हमारी second condition को satisfy कर रहा है। A0, B1, D is also 1. Correct. 1. Okay. Now what about else? I don't think, क्योंकि यहाँ से हमारी 1 की रेंज स्टार्ट हो गई है, तो अभी हमें और कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि A का 1 होना चाहिए। Okay. Now what about the third condition? C and D1. They are very easy. C and D1. So C and D both should be 1 together. Now this. Let me check the third row. Okay. C1 and D is also 1. Correct. So we can plot 1. Okay. Now this is all 0, 0. We can leave. What about this? This is also not 1, 1. Okay. Now look at this. 11. Kindly check 11. C is 1 and D is also 1. We have to plot 1. Now what else? No. Okay. All are covered. Now, after plotting the 1, the remaining empty cells we have to fill up by a 0. All right. Just a 0. Okay. 1 second. Okay. Now my truth table is completed. My truth table is completed. 1 second, please. These are basically the portions of 1. Okay. Now all these are 1. Okay. Just a moment, please. Okay. Now. Okay, this truth table and 0 and 1 plotting is over. Now what else we have to do? Just a moment, we have to go to the question. पहले हमें question check करना होगा, question में क्या कह रहे हैं. Okay, now this is very important. Draw the truth table for the input and outputs given above and write the POS expression for the XABCD. मतलब जो condition है, please understand this case is very important. कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें 1 प्लॉट करना है, वो क्वेश्चन में दिया था, यहां पर से हमने पढ़ा इन अबव द केसेस 1 इंडिकेट यस एंड 0 इंडिकेट नो, मतलब जो जो कंडीशंस उन पे आपको 1 प्लॉट करना है एंड द रिमेनिंग विल बी सेट एज 0. अब ये कह रहे हैं कि आपको एसओपी नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन द पीओएस.
तो पीओएस आपको लिखना है उन पोजीशंस का जहां पर आपने जीरोस प्लॉट किए। ओके, 1 मिनट प्लीज। ओके, नाउ आपको पीएस लिखना है जहां जहां पर आपने जीरोस प्लॉट किए। ओके, और मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी, पीएस ये हम अपने अर्लियर लेक्चर्स में पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं। तो अब इस पोजीशन पर आपको पीएस लिखना है। तो हाउ टू राइट द पीएस? पीएस में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें 1 को जीरोस बनाना होता है, and it is already they are zeros, so no problem, just we have to write a plus b plus c plus d. Understand? If you have any problem, please immediately raise your hand. So a plus b plus c plus, अब यहां पर d जो है वो 1 है, तो 1 को 0 कैसे बनाएंगे? We have to take the complement of the d. All right, in this manner. Now come to this part, a plus b plus c bar, because you can see that the c is 1, तो 1 को हम कॉम्प्लीमेंट करके 0 बना देंगे, एंड प्लस d. ओके, 1 वालों को हमें इग्नोर करना है क्योंकि बिकॉज वी आर राइटिंग पीओएस ऑन द बेसिस ऑफ 0, तो हम इस सेल को स्किप करेंगे और यहां आ जाएंगे। सो a प्लस b बार, बिकॉज b इज 1, c प्लस d। अंडरस्टैंड? अब हम इस सेल को स्किप करके यहां आ जाएंगे। a is 0, okay, b bar plus c bar and plus d is already 0. b and c 1 थे, हमने उनको कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम इस सेल पे आ जाते हैं, तो a बार प्लस b प्लस c प्लस d, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द 9? 9 के केस में हमको करना है a बार प्लस b plus c plus d bar. Understand? Now what about this? a bar, 1 second, a bar plus, very careful, बहुत से स्टूडेंट जल्दी में कॉम्प्लीमेंट की जगह नॉन कॉम्प्लीमेंट की जगह पे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं एंड दे इमीडिएटली गेट 0. ओके, स्टेप मार्किंग नहीं है इसमें। a plus a bar plus b plus c bar and plus d. I think we have done, and remaining all are 1. Understand? Now we have to write this first of all in a cardinal form. So cardinal form के लिए what we have to do, just a moment. Okay, तो cardinal form के लिए हम यहां पर अपना एक स्पेस ले लेते हैं, यहां पर हम इसका cardinal लिखेंगे। cardinal के लिए just I am taking pi. Okay, cardinal हमें लिखना है पीओएस का, तो सबसे पहले आउटपुट हमारा क्या है? x. तो x, 1 minute please, x. Okay, so x, then after that a comma b comma c comma d. Okay, इसका भी तरीका है, मेथड है, प्रोसीजर है। सबसे पहले हम आउटपुट वेरिएबल लेते हैं और आउटपुट के बाद ब्रैकेट में लेते हैं हम ABCD, क्योंकि आउटपुट इनपुट के बेस पे जनरेट होता है। सो इनपुट शुड बी इनक्लोज्ड विद द ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में एसओपी लिखना था या पीओएस लिखना था, एंड पीओ इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, देन ब्रैकेट। अब हमें यहां पर वो पोजीशंस लिखनी है जिन पर हमें 0 मिला। कौन कौन सी पोजीशंस पे हमको 0 मिला आप यहां से देख सकते हैं। दिस इज अ सीरियल नंबर, इन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव ऑलरेडी गिवन द सीरियल नंबर। तो पहले 3 0 मिल रहे हैं हमारे 0 1 2 पे, तो 0 1 2, ये नंबर्स सिर्फ हमें जीरोस के नंबर लिखना है। इस 0 के लिए हमारी पोजीशन है 4, ऑलराइट, कॉमा। इस 0 के लिए हमारी पोजीशन है 6, कॉमा। इन तीनों जीरोस के लिए हमारी पोजीशन है 8 9 एंड 10, 8, 9, 10। अंडरस्टैंड? अब और अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो कोई 0 होगा नहीं, कोई 0 नहीं। सो आई थिंक दिस पोजीशन पार्ट इज ओवर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एंड वी हैव टू राइट अ फाइनल एक्सप्रेशन। मतलब ये जो सारे आपके आइसोलेटेड टर्म्स हैं, इनको आपको लिखना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एंड दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। ये सारे आपके सम्स हैं अभी,
प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट के लिए हम कैसे लिखेंगे? ओके, 1 मिनट, जस्ट आई एम राइटिंग A plus B plus C plus D, and after that we have to put a dot, then another set A plus B plus C plus D bar. Very careful, very carefully. Okay, and the third one is A plus B plus C bar and plus D. This one is third now. 1 2 A B plus C bar plus D. Okay, fully concentrate over here. And what about the fourth one? A plus B bar, A plus B bar plus C plus D. अंडरस्टैंड? अब हम नीचे आ जाते हैं क्योंकि एक लाइन में सारे आ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फोर्थ तक। फिफ्थ वन इज A प्लस B बार प्लस C बार प्लस D. इसको भी ब्रैकेट में इंक्लोज कर लेते हैं। One, sorry. Okay, now after that 1 2 3 4 5, sixth one is A bar plus B plus C plus D dot A bar plus B plus C plus D bar plus dot A bar plus B plus C bar and plus D. That's it. This is your complete answer. I just want to check my answer. So here I'm pasting my answer. Can you please confirm? This is my calculated answer and this is the actual real answer. So it is absolutely matching. And this is basically the expression in the form of product of sum. So this question is completed by and large. Okay, just a moment. I'm just taking the print screen and sending to your group. Okay, now it's done. Okay, 2017 question is solved. Now, I want to ask, I just want to clear the screen, then you will better understand what I have written. Okay, now I want to ask, do you have any problem in any set? Please answer everyone. Okay, because two-way communication is very, very important in the online classes. So can you please confirm, do you have any problem in this? Please answer. Yes. सर ये क्या रिड्यूस करने को बोलेगा एक्सप्रेशन के मैप के थ्रू? नहीं, इसके बाद पहले आता था बिफोर 2015. ओके सर. बिफोर 2015 आपको रिड्यूस करने के लिए भी बोला जाता था. एंड इन माय लिस्ट आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस फॉर द रिडक्शन. यस सर. बट आफ्टर द 2015 आपका आंसर यहीं तक कंप्लीट हो गया. उसका रीजन ये है कि अब आपका पेपर 70 मार्क्स का आता है, तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस अब फ्रेम नहीं होते हैं. ओके ओके सर. समटाइम इट हैपेंस के आपसे कॉलेज में कभी, वो भी बहुत रेयरली, क्योंकि कॉलेज भी बोर्ड ओरिएंटेड ही चलते हैं, तो कभी कॉलेज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए कभी कभी कुछ कॉलेजेस में क्वेश्चन आ जाता है कि रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन बाय द के मैप. तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड है, आपको कुछ नहीं करना है. यू जस्ट ड्रॉ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने यहां पर अभी स्ट्रक्चर मेंटेन किया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. अब आप कुछ नहीं करेंगे, एक के मैप बना लीजिए जिसमें 4 वेरिएबल का पीएस के मैप है. 1 सेकेंड, आई जस्ट वांट टू शो यू. हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट क्रिएटेड है. ओके, 1 सेकेंड. This is the template for PS. No. Template KMap related PQRS POS ping. Okay, POS ping. This is the template. Now what we have to do? Just copy this much portion, only this much, and just paste over here and expand it. Okay, and these are the position already you have generated. Only you have to put
the 1 on this 0 on this position because PS. तो आपको सिर्फ zeros plot करना है. Okay, and it's very easy for you all. Just a moment, please. Okay, 1 second. See, on the 0 position you have to place 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, 6, 8 and 9, 6, 8 and 9. Understand? क्या बन रहा है इसमें? Can you please confirm? मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 कॉर्ड्स हैं. आप भी अपने हिसाब से देख लीजिए. You have to think according to you. Arslan, are you there? Okay. So please, just a moment. 1 second. Yes, sir. Okay. So do you have any problem up to this? No, sir. मैं उसी क्वेश्चन को जो अभी हमने क्वेश्चन 2017 का सॉल्व किया है, वैसे तो वो क्वेश्चन वहां पे कंप्लीट हो गया, बट फॉर प्रैक्टिस पर्पस एंड फॉर एनहांसिंग द नॉलेज हम इसको केमैप से भी सॉल्व कर रहे हैं. ऐसा आप पूछा नहीं जाता है, लेकिन अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी टाइम है, तो हो सकता है जो इंटरमीडिएट एग्जाम हो किसी एक में कोई कॉलेज पूछ ले, तो उसके लिए हम उसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, और अदरवाइज हमारी केमैप पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो सबसे पहले हम इस वाले को, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ये हमारा एक कॉर्ड है, बन रहा है कि नहीं, और एक कॉर्ड हम ये ले लेंगे. सबसे बेस्ट कॉर्ड हमारे यही 2 होंगे. अंडरस्टैंड? नाउ आई वांट टू राइट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन. उसमें तो आप सब एक्सपर्ट हैं, फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं. ओके, सो कॉर्ड 1 हमने कौन सा ले लिया? कॉर्ड 1 हमने बनाया था 0, 1, 8 एंड 9. तो 0, 1, 8 एंड 9. ऑल राइट. अब यहां पर हमें रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन लिखना है. तो अब आप बेसिक लेवल पे नहीं, अब आप इनिशियल लेवल पे नहीं है कि हम सर्कल्स वगैरह करके आपको सब दिखाएं. अब आप डायरेक्ट, हाँ, वेरी गुड. ए हमारा इस कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इन्वॉल्व है ना, 0, 1, 8, 9. तो इधर से और इधर से हमको बी मिल जाएगा ना, और बी और इसमें से हमको क्या मिलेगा? सी. तो आई थिंक बी प्लस सी होना चाहिए. क्यों? आई थिंक बी प्लस सी. अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड कॉर्ड? कॉर्ड 2 हमने बनाया था 0, 2, 4, 6. ऑल राइट. अब आप इसका जल्दी बताइए कि क्या होगा? A plus D. इस कॉर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें ये पूरा सेट इन्वॉल्व है, ये वाला. और अगर हम अपर रीजन में देखें तो ये इन्वॉल्व है और ये इन्वॉल्व है. तो इसमें हमको कॉमन मिल रहा है A. तो जस्ट अ मोमेंट. A एंड प्लस अपर रीजन में हमको क्या मिल रहा है? D, है ना. तो अब हम इसकी रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. तो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम में B प्लस C डॉट A प्लस D. अंडरस्टैंड? अब आप देखिए कि व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द के मैप. लुक एट, मैं अभी आपको दिखाता हूं. जस्ट अ मोमेंट. आप इस एक्सप्रेशन को देखिए. दिस इज अनरिड्यूस्ड एक्सप्रेशन, unsimplified expression, but after the K-map you are getting this much expression which is pure, which is simplified, which is reduced expression. And कितना टाइम लगा? जस्ट अगर हम एक्सप्लेन ना करें तो जस्ट 5 और 6 सेकेंड्स
हार्डली 10 सेकेंड्स में हमने इसको रिड्यूस कर लिया. अगर इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को हम लॉ से रिड्यूस करते, देन डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम. ओके, नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द गेट. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द गेट के लिए हम अपनी तरफ से एक एजम्पशन ले लेते हैं. जस्ट आई वांट टू राइट द एजम्पशन ओवर हियर. ओके, 1 minute प्लीज. ओके, ड्रॉ the logic gate of the reduced expression by NOR gate. Assume that variable and their complement are available as input. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब यह है, दिस इज बेसिकली, मैं बता दूं आपको कि विच क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग. दिस इज बेसिकली द मॉडिफाइड क्वेश्चन. वी हैव डन द मॉडिफिकेशन इन द 2017 क्वेश्चन. सो इट्स अ मॉडिफाइड क्वेश्चन ऑफ 2017 और दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई. तो इसको हमें नॉर गेट से बनाना है और एजम्पशन है कि वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट, दिस इज COMP मींस कॉम्प्लीमेंट, आर अवेलेबल एज इनपुट. ओके, नो प्रॉब्लम. जस्ट इमीडिएटली आई एम गोइंग टू ड्रॉ. जस्ट फॉर अ सेकंड प्लीज. ओके, so now B और C को हम पास करेंगे. एक्सप्रेशन में तो प्लस ऑपरेटर है, प्लस मींस और ऑपरेटर, बट क्वेश्चन में दिया है कि यू हैव टू ओनली अप्लाई द नॉर गेट. नो प्रॉब्लम. दिस इज बेसिकली द नॉर गेट एंड इन दिस देयर इज नो बार और कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल. तो हम बार और कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्टली पास नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन में गिवन नहीं है. ए और डी को okay, now after that these lines will be connected with one more OR gate. Now what expression will be done over here? The expression you will get is B plus C, A plus D bar. Okay, 1 minute, I just want to write. Okay, first of all, actually some student asked, sir, what is the proof कि यहां पर यही एक्सप्रेशन आएगी? तो इसकी प्रूविंग भी मैंने कराई है. मैं आज टाइम है तो मैं इसकी एक बार प्रूविंग भी करा देता हूं. वो प्रूविंग भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए. तो अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर हमको क्या एक्सप्रेशन मिलेगी? डू यू हैव एनी आइडिया? ओके, B plus C whole bar मिलेगा. वेरी गुड. एंड B plus C whole bar. ओके, नाउ व्हाट अबाउट ऑन दिस स्टेज? यहां पर हमको क्या मिलेगा? A plus D whole bar. अंडरस्टैंड? तो यहां क्या मिलेगा हमको? इस जगह पर आपको मिलेगा A plus B plus C होल बार प्लस A प्लस D होल बार, और इस पूरे का एक बार और होल बार. Why? Okay, because due to the another NAND gate. Okay, so just a moment, in a simplified manner I just want to write. Just give me 1 second. Okay, in a simplified manner I want to write. Maybe कुछ स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो ये बेसिकली ऐसे आएगा. B plus C whole bar plus A plus D whole bar. ओके, और इस पूरे का होल बार. एग्री और नॉट? कैन यू प्लीज कंफर्म, एग्री और नॉट? Yes sir. Okay, do you know one person named De Morgan? So just Yes, I sir. want to apply the De Morgan, the very important person. B plus C double bar, and this plus will be converted into the dot, and A plus D double bar. This is person named De Morgan law, and the another person name is involution.
Do you know the meaning of Involution, involution? Bar to bar will be double bar cancelled out. cancel. So bar to bar will be cancelled. One video is already uploaded related to law, related to Boolean law, and A plus D. Can you please confirm this is the same expression I am getting? The same expression I am getting, just this one. Okay, just a moment. For more clarification, just I want to move this expression and putting over here. Understand? Can you please confirm this one and this one is same? So it is proved that it is the major proof that after the NOR gate, definitely we will get the same expression. Understand? So this much is completed. And most of the time in the earlier examples, मैं कहता था कि आप इस expression को यहाँ लिख दीजिए. तो मे बी कुछ स्टूडेंट के डाउट होता था, तो लिख देने का मतलब यह है कि इसका प्रूफ होता है कि नहीं होता है. तो मैंने आज पूरा प्रूफ करके दिखा दिया. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड. अब हमने एक लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की, द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स. वो लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे. बस आपको प्रैक्टिस करना है. अगर हम सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करते गए, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग द प्रैक्टिस विद द वेरी गुड इंटेंसिटी. कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी कर सकते हैं प्रैक्टिस. तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा. और अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इसी तरह के आपके पीएस से रिलेटेड. अभी ये जो सेट मैंने बनाया था, दिस सेट इज कंप्लीटेड आई थिंक. ओके, 2017 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड. एंड द पैसेंजर इज अलॉटेड द विंडो सीट इन द एयरक्राफ्ट. ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है. पैरेलल रेलवे ट्रैक्स, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन एंड द वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड. So I think this is enough for today's class. And if you have any doubts, so please you can directly contact to me. In the next upcoming lectures, we will see some more other topics. Do you want to ask any question? Do you want to ask any question? No, sir. No, sir. Okay. So please do the practice and complete this task as soon as possible. Okay? Because the programming is also waiting for us. Now. Sir, share कर देगा ये WhatsApp पे. Sure. I will definitely just give me 1 second. I will share. Yes, sir. Questions.